Don't let the fear of the time it will take to accomplish something stand in the way of your doing it. The time will pass anyway. We might just as well put that passing time to the best possible use. Finally, today is the day. It's 12th of October 2025 and I am here in the BMW showroom to book my dream car, my first car and my family's first car. किसी ने second and third and or even fourth hand car भी नहीं ली मेरी family में आज तक. And I took this goal of buying my first car, my dream car, my family's first car. I took this goal in the month of March or April this year only, and it's been like almost 8 months, 7 or 8 months, and now I am sitting here in the BMW showroom to book my first car, my family's first car. Now, the reason of taking this challenge on social media and doing every single thing in front of you was to show you that it is possible through trading or it is possible through anything. तुम जो भी कर रहे हो, अगर तुम प्रॉपर तरीके से ऑल इन जाके करोगे ना, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो. आई केम फ्रॉम समवेयर जहाँ पे उस बंदे की फैमिली ने कभी किसी ने कार ही नहीं ली. And here I am sitting in the BMW showroom. पहली कार, family की first car, that too BMW. And you guys know why I took the challenge of buying a BMW. First thing, obviously मेरे को BMW चाहिए and like I don't think कि कोई होगा जिसका dream नहीं होगा BMW लेने का. But there is always one thing in my mind. मेरे घर में ना पूरा एक book shelf है. I have posted like a bookshelf picture multiple times and showed that to you in my multiple videos. So वहाँ पे ना multiple books हैं about mindset, about law of attraction, about manifestation, and I've read a lot of books. Recently अभी मैं obviously नहीं पढ़ पा रहा because content plus trading and all इन सब में मैं इतना busy हूँ कि time नहीं मिलता. But I have read a lot of books and there is one thing which is always in my mind. If you think big, you'll achieve big. छोटा सोचोगे तो छोटा ही अचीव कर पाओगे, बड़ा सोचोगे जब ही तुम बड़ा अचीव कर पाओगे. So that's the reason I took this goal and I did every single thing in front of you to show you guys that it is possible. Buying a phone, buying a bike, buying a car, that too, a BMW is possible through trading. और again I'll say this thing, forget about trading. तुम कुछ भी कर रहे हो, अगर तुम all in जाके अपने पूरे दिलो जान से करोगे ना तो तुमको वो चीज़ मिलेगी. Because universe will offer you everything. It's just that it's you who is not asking for everything which you deserve. And there is a saying, मैंने जो books पढ़ी multiple books में है, ask and you shall receive. And शाहरुख खान का इसी से related एक dialogue भी है जिसको तुम law of attraction, manifestation कुछ भी कह सकते हो. अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है. ऐसा ही कुछ है. मतलब तुमको पता है. अब मैं यहाँ पे साउंड यूज़ नहीं कर सकता बिकॉज कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देंगे वो लोग. बट दैट इज समथिंग विच इज his dialogue. So yeah, today is the day I am here to book my first car, my family's first car, my dream car. And let me first get all the paperwork done. And उसके बाद मैं ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ. And all paperwork is done. अब मैं कौन सी कार ले रहा हूँ, कौन सा कलर ले रहा हूँ, ये जब मैं डिलीवरी लूँगा कार की उस वीडियो में शो करूँगा. And there are multiple things which I want to share with you. But ये सारी चीज़ मैं उस वीडियो में शेयर करूँगा. And there are a few things which I want to just share that again, every single thing done in front of you. I took this challenge with the Titan Capital prop firm that
टाइटन कैपिटल के पे आउट से मैं अपना ये पूरा BMW लेने का ड्रीम जो है फुलफिल करूंगा. एंड आई रीच देयर लाइक रिसेंटली व्हाइल आई वाज इन दुबई. आई गेट a $4,300 payout from Titan, and in total I have crossed like $50,000 in payout from Titan Capital. So yeah, it is possible. And in the morning only I landed in India, and I guess it's around like 4 a.m. मैं land करा था. Then by 6 p.m. I reach my home. I like sleep for like 4 or 5 hours, go to my barber, get my haircut and beard done, and then I came here. Now the reason मैं दुबई में और 2-4 दिन रुक सकता था, बट मैं यहाँ वापस इंडिया आया. एंड द रीजन सब कुछ करके मेरे को आज ही यहाँ पे आके कार बुक करने थे इज टुडे इज माई बर्थडे एंड आई टर्न 28 टुडे. एंड इन लास्ट 28 ईयर, अब ऑब्वियसली 28 ईयर से तो मैं अर्न नहीं कर रहा, बट लेट्स से 18 ईयर के बाद की बात करते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 ईयर्स, बिकॉज 18 के बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टार्ट अर्निंग. सो इन फ्रॉम लास्ट 10 ईयर आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे. आई हैव नेवर गिफ्टेड एनीथिंग टू माई सेल्फ. सो इट्स लाइक आज बर्थडे है, तो on my birthday let me gift something to myself and let's celebrate my birthday in a good way, because like इससे बेटर क्या होगा यार. मतलब मैंने आज तक अपने बर्थडे पे अपने को 10-20 हज़ार की चीज़ भी नहीं दी, और मैं यहाँ पे आके 70-75 लाख की अपने आप को चीज़ गिफ्ट कर रहा हूँ. देयर इज लाइक इससे और बेटर क्या ही हो सकता है. सो दैट वाज द रीज़न आई फ्लाई बैक फ्रॉम दुबई, एंड आज ही मैंने आके मेरे को ये BMW बुक करनी थी. अगेन कौन सी करी है, क्या कलर है, एंड क्यों जो मैंने करी है वो वाली कार बुक करी, एवरीथिंग आई एम गोना टेल इन द डिलीवरी वीडियो. एंड टुडे इज 12th of October, बट जो मैं इसकी डिलीवरी है ना वो लूँगा अराउंड नवंबर मिड में. नाउ देयर आर मल्टीपल रीजन ऑफ डूइंग सो. द फर्स्ट रीजन इज अभी तो 18 को धनतेरस है. मैं उस जब भी ले सकता हूँ, बिकॉज लाइक इंडियंस के हिसाब से वो बहुत ऑस्पेशियस, आई गेस दैट इज द वर्ड, ऑस्पेशियस ओकेजन होता है. बट the reason I'm not like taking the delivery at that time is भाई मेरे को कार चलानी नहीं आती. And हाँ, I turned 28 but I don't know how to drive, because मेरी फैमिली में कभी किसी ने कार ली नहीं. Then I came from such a place, मतलब ऐसा नहीं है स्टोरी बिल्डअप और ये सब, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जस्ट बिल्ड अप द स्टोरी, बट जब तुम बाद में तुमको पता चलता है उनके ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होता है, सब कुछ उनके पास होता है. बट आई जेन्युइनली कम फ्रॉम सच अ प्लेस कि मेरे कभी ऐसे दोस्त भी नहीं थे जिनके पास गाड़ियां हैं या ऐसा कुछ है. नाउ आई हैव लाइक फ्रेंड्स जिनके पास कार्स हैं, एंड दैट टू दे हैव लाइक really good luxury cars. But there was a time like 1 or 2 years back कि मेरे पास नहीं थे भाई. I came from such a place कि मेरे पास नहीं थे वैसे दोस्त की जिनकी गाड़ियां लेके मैं गाड़ी चलाना सीख लूं, या उनकी गाड़ी लेके मैं कहीं बाहर जाऊं. सो मेरे को गाड़ी चलानी आती नहीं. एंड देन अभी 18th बस आ ही गया, नहीं नेक्स्ट 6 डे, अब मैं नेक्स्ट 6 डे दिन में अपनी गाड़ी ले लूं, देन मैं बाहर जाके ठोक दूं, मेक्स नो सेंस. देन लाइक देयर वर लाइक 3 or 4 days complete holiday because of धनतेरस, दिवाली एंड ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद मेरे को कहीं बाहर जाना है. So after like once this all festive season is over and मैं बाहर से वापस आ जाऊंगा, then I'll take like driving classes for at least 7 to 10 days, because भाई Swift Desire नहीं चलानी, BMW चलानी है. So obviously proper तरीके से सीखना पड़ेगा, and then I have to apply for the license as well. That thing might took around maybe a week or 2. So all in all मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा. मैं ऑब्वियसली बाद में बुक कर सकता था, बट आई टोल्ड यू द रीजन. मेरे को 12th अक्टूबर को ही क्यों बुक करनी थी. मैं दुबई में भी और रुक सकता था, बट देयर इज अ रीजन. मेरे को 12th अक्टूबर को ही आना था, 12th अक्टूबर को ही आके यहाँ पे बुक करनी थी. नाउ दिस वीडियो विल बी अपलोडेड वंस आई लाइक टेक द डिलीवरी, एंड उसके बाद ही ये वीडियो अपलोड होगी. सो जिस दिन तुमको ये वीडियो देखने को मिले समझ जाना BMW आ चुकी है. नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच आई वांट टू शेयर, एंड दैट इज कि सेडान्स भी है यहाँ पे. So this is BMW X1, but BMW is famous for like sorry this is SUV, this is SUV, and BMW is something which is famous for sedans. BMW को चलाने का मजा ही सेडान में है यार, SUV में नहीं है. SUV के लिए दूसरी कार्स हैं. एंड अभी तक तुमने जितना भी सोशल मीडिया पे देखा है that I'll go and buy a pre-owned BMW and I'll go and buy a SUV, Mahindra Thar Rox, XUV 700, Scorpio, and that was all a build-up thing. वो कभी प्लान था ही नहीं. From the very beginning, this was the plan कि गाड़ी आएगी तो न्यू आएगी और BMW आएगी और सेडान ही आएगी. And all these things which I am sharing on social media कि भाई XUV 700 ले लूँ या Thar Rox ले लूँ या फिर Indian roads are not good, bullshit. सब चल जाता है भाई इंडियन रोड्स पे.
ठीक है, मैं मानता हूँ खराब है, बट ठीक है, सब चल जाता है भाई। यू कैन ड्राइव अ BMW ऑन इंडियन रोड्स, इतनी भी खराब नहीं है, स्पेशली इफ यू आर लिविंग इन स्टेट्स लाइक दिल्ली, you can like easily drive all these cars. So everything was a build up story just to fulfill the egos of hater कि उनको थोड़ा अच्छा लगता रहा है until that BMW come कि भाई इसके बस की तो है नहीं, इसके सारे पे आउट फेक है, सब कुछ नकली है, सब कुछ ढोंग है, कुछ भी इसके पास असली नहीं है। All these things are build up things so that haters को फ्यूल मिलता है, उनको खुशी होती रहे, उनकी ईगो बूस्ट होती रहे कि हम तो सही थे, हमको पता है इसका पे आउट फेक है, इसके बस के कुछ भी नहीं है। दैट वाज द रीजन ऑन सोशल मीडिया आई एम शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स कि भाई प्री ओन्ड लूँ तो कौन से लूँ, एंड प्री ओन्ड कहाँ से लूँ, एंड एक्सयूवी लूँ, स्कॉर्पियो एन लूँ, या फिर कौन सी गाड़ी लूँ। And September month was not at all a good month for me. October, it's 12th of October. October भी पता नहीं कैसा जाएगा, because like starting के 12 दिन मैंने ट्रेड करा नहीं. Like we have like 18 days left. उसमें भी मतलब फेस्टिवल्स आ जाएंगे, तो I don't know October कैसा जाने वाला है. September month was like the worst month for me. I lost a lot of money, but still I'm here standing in the BMW showroom to like book my first car, my dream car. And the reason is one bad month don't decide that you are a good trader or a bad trader. एक खराब मंथ होने की वजह से ऐसा नहीं हो जाता कि भाई मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, अब मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया. That is not how things goes. जो मैंने पीछे प्रॉफिट कर रखे, जो मैंने पीछे पे आउट्स निकाल रखे, all those were like my thing, my payouts, my what can I say, asset investment, क्या बोलूँ मैं उसको, savings, जो तुम समझना चाहो वो तुम समझ सकते हो, बट वो एक मैंने बिल्डअप कर रखा है. I genuinely tell you, जब मेरे एपेक्स का पे आउट आया था ना, जब भी मेरा था कि एक गुड क्वेश्चन बिल्डअप हो गया है, अब मैं आके कार ले लेता हूँ. बट आफ्टर दैट लाइक जुलाई मंथ आई मेस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई आई मेस्ड अप. उसके बाद अगस्त नहीं, इन द मंथ ऑफ जून आई मेस्ड अप. जुलाई अच्छा गया, अगस्त अच्छा गया, इन द मंथ ऑफ सितंबर आई मेस्ड अप. सो ये साइकिल रिपीट ही हो रही है. अब मेरे पास जो फंड्स हैं जो मैंने पे आउट से निकाला है, अब मैं क्या करूंगा, उसको ट्रेडिंग में लगाऊंगा, उसको वापस से डालूंगा, अकाउंट्स खरीदूंगा, देन अकाउंट्स ब्रीच जाएंगे, पे आउट रिजेक्ट हो जाएंगे, और इन द एंड वो पैसा जीरो ही हो जाना है. सो इजंट इट बेटर कि वो अकाउंट्स पे लगाने से अच्छा मैं एक कार ले लूं, बिकॉज यू गाइज थिंक्स कि दिस इज अ लाइबिलिटी, बट फॉर मी दिस इज एन एसेट. भाई यू थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. एक बंदा इसके घर में कभी गाड़ी नहीं आई, यू सीरियसली थिंक he'll look all these things like a liability? No, not at all. On top of that, it is like very necessary कि तुम्हारे घर वालों को भी पता चले भाई कि तुम सही में पैसा कमा भी रहे हो. तुमने पे आउट निकाला, तुमने उसको री इन्वेस्ट कर दिया, तुमने वापस से पे आउट निकाला, तुमने री इन्वेस्ट कर दिया. मैं बोल रहा हूँ तुम हर क्वार्टरली 100% रिटर्न बना रहे हो. तुम 2000 डाल रहे हो, 4000 निकाल रहे हो, 4000 डाल रहे हो, 8000 निकाल रहे हो, 8000 डाल के 16000 निकाल रहे हो, बट तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही. तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी फैमिली वालों को पता चल रहा है कि हाँ भाई हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है, हमारे द वे वी यूज्ड टू लिव उसमें चेंज आया है, द वे लाइक पीपल यूज्ड टू जज अस उस पे चेंज आया. लाइक पैसा किस लिए कमा रहे हो यार, ये बताओ तुम मेरे को. यू आर अर्निंग बिकॉज यू विल गेट रिस्पेक्ट. इफ यू लाइक फेस एनी इशू, मनी विल सॉल्व एवरी सिंगल थिंग. मनी विल सॉल्व एवरी सिंगल इशू. कभी तुम्हारा कोई दोस्त वो काम नहीं आने वाला, हमेशा तुम्हारा पैसा ही काम आएगा. देन कम्स योर फ्रेंड्स एंड ऑल दीज पीपल्स, बट फर्स्टली तुम्हारा पैसा ही काम आएगा ना. सो वो पैसा अगर है तो पता तो चले भाई तुमने सही में पैसा निकाला, तुम्हारे घर वालों को तो पता चले कि तुमने सही में पैसा निकाला है, कमाया है. तुम्हारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, तुम्हारी लाइफस्टाइल की वजह से तुम्हारी फैमिली को सोसाइटी में रिलेटिव से रिस्पेक्ट मिल रही है. यू जस्ट इमेजिन दिस थिंग, थिंक योरसेल्फ इन माय प्लेस एंड यू जस्ट इमेजिन दिस थिंग. तुमने पैसे निकाले, तुमने पे आउट्स निकाले, एंड देन तुम्हारी मेरी फैमिली में किसी ने गाड़ी ले भी रखी हो, बट जस्ट इमेजिन योरसेल्फ इन माय प्लेस. तुमने पे आउट्स निकाले, तुमने सब कुछ करा, एंड देन यू बाय अ BMW. तुम इमेजिन करो भाई, तुम्हारे पेरेंट्स BMW से निकल के तुम्हारे फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स BMW से निकल के किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं. बट सर ऊंचा करके जाएंगे भाई, वो सर ऊंचा करके. Because these things, like we are living in a materialistic world and all these things are necessary. And I don't like care about all these things कि क्या होता है वो 24-10 रूल. नहीं, ऐसा नहीं होता, कुछ तो अलग होता है. 64-10 रूल, अरे भाई इन सब रूल के हिसाब से चलते रहेगा, you won't be able to achieve anything. From the very beginning, I was a big risk taker. That was the reason. Zero backup होने के बाद भी मैंने अपनी जॉब छोड़ी. That was the reason. I entered into real estate business. That was the reason. Real estate business छोड़ के मैं ट्रेडिंग में घुसा. That was the reason. मैं ट्रेडिंग में सब कुछ लूज करने के बाद मेरे सिर्फ अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े थे. Still, I put that 50,000 अकाउंट में भी नहीं थे, वो म्यूचुअल फंड में थे. Still, I put that 50,000 rupees at risk. And from there, I build up everything.
कितना पैसा कमा लेता? व्हाट डू यू गाइस थिंक, कितना पैसा कमा लेता मैं अपने 50,000 रुपीज़ से जो म्यूचुअल फंड में थे? सीएजीआर मिलता, मैं बोलता हूँ ऑन अ हायर साइड मेरे को सीएजीआर मिलता 18%, 21%। 2 साल हो गए हैं, ठीक है। 2024 के स्टार्टिंग में मैंने निकाले थे म्यूचुअल फंड से, 1.5 साल हो गए। मैं सीएजीआर पकड़ता हूँ 21% का, कितना ही कमा लेता मैं? 60,000, 70,000, मैं मैक्स पकड़ रहा हूँ 80,000 हो जाता हूँ मेरे 50,000 रुपीज़ जो मैंने म्यूचुअल फंड से निकाला। इससे ज़्यादा थोड़ी हो पाता। वो 50,000 निकाल के मैं कितना पे आउट निकाल चुका हूँ, तुमको ही पता है। यू हैव टू बी अ रिस्क टेकर एंड यू हैव टू सी दिस वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये 20, 10, 5 पता नहीं कौन कौन से रूल्स हैं, ये सब में मत पढ़ो। तुमको इतना पैसा चाहिए चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा, इन सब में मत पढ़ो। चेंज योर पर्सपेक्टिव, थिंक कि देयर इज अबंडेंस मैन। तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो, इतना पैसा है यार दुनिया में। लोग क्या क्या कर रहे हैं, तुम छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम सोचते हो ये पॉसिबल नहीं है। कोई डाल देता है पे आउट अपना $1000 का, तुम सोचते हो ये फेक है। वाइल लाइक पीपल, लाइक आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, पीपल are withdrawing like 6 figure, 7 figure in payout. Apex से payout देखते हो तुम? $1 million in payout people are withdrawing. 600K, 700K, millions of dollar in payout people are withdrawing. You guys thinks कि किसी का $1000 का payout है वो fake है. Just like दिमाग खोलो भाई, दिमाग खोल के थोड़ा सोचो। दुनिया में लोग क्या क्या खरीद रहे हैं भाई? बस चीज़ों को तो छोड़ दो, लोगों ने लोगों को खरीद रखा है यार। एंड आई गेस ये चीज़ें खरीदना फिर भी मुश्किल है, लोग खरीदना ज़्यादा आसान है आज के टाइम में। 50-50 हज़ार में तो मैं पता नहीं क्या क्या चीज़ें करवा सकता हूँ। अगर तो इफ़ यू नो कि 50,000 दे के किसी से क्या हो सकता है। ये तो फिर भी गाड़ियाँ तो फिर भी 70-80 लाख की आती हैं। सो चेंज योर माइंडसेट, देन ओनली योर लाइफ गोना चेंज। एंड आई एम गोना शो यू द कार व्हिच आई हैव बुक्ड एंड द कलर एंड एवरीथिंग, बट let me give you the tour of all the cars which are standing here in the showroom as of now. So this one is BMW 330 Li, and the interior they have like I guess जितनी खड़ी है X1 खड़ी है, 2 सीरीज खड़ी है, 5 सीरीज खड़ी है, even 5 सीरीज से बेटर जो इंटीरियर मेरे को लगता है ना, that is of BMW 330 Li. And the reason is जो उसका अंदर का लुक है ना, उसको जो टैन इंटीरियर उन्होंने दे रखा है, दैट लुक्स लाइक रियली गुड। लाइक इफ आई शो यू आफ्टर दिस, आई लाइक गेट सम बी रोल्स एंड आई शो यू कितना भाई कितना प्रीमियम लगता है। देन वी हैव दिस BMW X1 which is SUV। पता नहीं भाई BMW ने SUV क्यों बनाई। BMW is famous for sedans यार, sedan and for the sports car, पता नहीं इन्होंने क्यों बनाई। but you see the interior of this X1, like it doesn't look good. तुम खुद देखो एक बार, it doesn't look good. But so there is this 5 series. This is 5, yeah. So there is this 5 series also here. But if I show you the interior of 5 series, नहीं ये अच्छा है, ये बहुत बढ़िया है। but still I am telling you, मेरे को personally इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। and I'll show you the interior of this. Just have a look at this tan interior of 3 series. It looks so good, it looks so premium. And हाँ यार, like if you see, एक तो भाई it's Li मतलब limousine plus like it's good. You guys just see, अब यहाँ पे बेसिकली जो तुमको मर्सिडीज में मिलता है ना, वो तुमको इसमें Li में मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली यार that 5 series is even like 10x better than Mercedes. Basically BMW is 10x better than Mercedes, but 3 series is good, 5 series is good. But if I talk about just the interior, I personally find 3 series interior even better than 5 series. And X1 is like entry level car for BMW in SUV segment. Then we have this 2 series. 2 सीरीज में भाई वाइट इंटीरियर दे रखा है इन्होंने, आई डोंट नो, बट जो इसका गेट है ना, दैट इज लाइक अ स्पोर्ट्स कार गेट। तो तुम देखोगे ना, अपन इसमें ऊपर है ही नहीं। सो दिस इज अ लाइक 2 सीरीज, इट कॉस्ट लाइक अराउंड 57 और 58 लाख। एंड दिस इज ऑल्सो गुड, बट इसका इंटीरियर इतना अच्छा नहीं है। प्लस कार बहुत छोटी है यार, थोड़ी सी छोटी है। अब मैं इतना तुमको बोल रहा हूँ तो तुमको आइडिया तो लग गया होगा कि मैंने कौन सी कार ली होगी। सो कमेंट डाउन व्हाट यू गाइस थिंक कि सबसे बेस्ट कौन सी है, और तुमको क्या लगता है कि मैंने कौन सी कार बुक करी होगी, क्योंकि मैं सब कुछ दिखा के तुमको ऑलरेडी
कंपेयर करके अपना पॉजिटिव एक बता रहा हूँ. तो आई गेस यू गाइज नाउ गेट एन आइडिया कि मैंने कौन सी बुक करी होगी. बट दिस इज ऑल्सो गुड. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कार इज द डोर. पूरा यहाँ से इसमें वो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं यार, that is something which is not coming up in your mind, but it's good. It's really good. But जो थोड़ा अंदर स्पेस है that is like very less. And M340i is also there, but वो बाहर खड़ी है. There is a BMW Z4, उसकी डिलीवरी हो रही है, and that also looks like really good car. And that is again a 5 series. If I show you the 5 series again, so अगर तुम आगे से देखोगे ना, so 2 series का जो बाहर का है ना पार्ट, that is also like looks really good. And 3 series का obviously अच्छा लगता है. 5 series का और अच्छा है because उसमें लाइट्स आने लग गई हैं. Even 2 series में लाइट आ रही है अभी. And X1 by again क्यों बनाई भाई BMW ने SUV. सेडान्स में अच्छी है BMW. And there is this again this 5 series. This is locked. I guess उधर से ट्राई करता हूँ एक बार. This is locked and open करवानी पड़ेगी. But yeah, this 5 series is also like really good. And there we have Z4. Z4 की कोई अभी डिलीवरी ले रहा है. And all in all, I guess you guys must know this thing by now कि मैं कौन सी लेने वाला हूँ and मेरी कौन सी प्रेफरेंस है. अभी तक तुमको इतना समझ आ गया होगा मेरी बातों से. So that's all for this video. And जब गाड़ी ले चुका हूँ उसके बाद ही वीडियो डालूंगा, बिकॉज उससे पहले आई थिंक मेक्स नो सेंस कि मैं अभी से वीडियो डाल के रख दूँ इसकी. बट जब भी तुम वीडियो देखोगे समझ जाना भाई गाड़ी आ चुकी है. एंड अगेन देयर वाज नेवर अ प्लान कि मैं प्री ओन्ड गाड़ी लूँगा. देयर वाज नेवर अ प्लान कि मैं XUV700 लूँगा या महिंद्रा थार रॉक्स लूँगा या फिर कौन सी थी वो स्कॉर्पियो एन लूँगा. ये सब कभी प्लान में था ही नहीं भाई. देयर वाज ऑलवेज अ प्लान ए एंड दैट इज टू बाय अ BMW. अगर वो प्लान बी भी था ना, वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि BMW लेनी है और न्यू लेनी है. यू गाइज मस्ट हैव सीन माई मल्टीपल पॉडकास्ट. मैंने वहाँ पे हर जगह ना एक ही चीज़ बोली है. मैं ट्रेडिंग में जितना कर पाया वो उसका रीज़न सिर्फ एक ही है. देयर वाज ओनली प्लान ए. एंड यहाँ पे मैं BMW ले पाया उसका सिर्फ रीज़न एक ही है. आई वॉज हैविंग ओनली प्लान ए. इसके अलावा कभी कोई प्लान था ही नहीं. यही प्लान था. एंड दैट वॉज द रीज़न आई एम एबल टू बाय अ कार एंड दैट टू अ न्यू. बाकी एक दो बार फाइनल डिलीवरी लेने से पहले वापस से थार रॉक्स और स्कॉर्पियो एन की फ़ोटो डाल दूंगा, सो दैट हेटर्स को अच्छा लगता रहे, उनको थोड़ी तसल्ली मिलती रहेगी. इसके बस की नहीं है. बट लेट मी नो इन द कमेंट व्हाट यू गाइस थिंक कि फाइनली कौन सी गाड़ी आई है, कौन से कलर की आई है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड बेल आइकन पर क्लिक कर देना, सो दैट जब डिलीवरी की वीडियो डालूँ तो तुमको नोटिफिकेशन आ जाए. चलो टाटा.